Assalamu alaikum, Sana. Thank you so much for joining the session. Assalamu alaikum. How are you, man? I'm good. I'm good. Thank you so much. I'm pretty much sure a lot of people know you in the industry, but just for the audience, if you can tell me about Mhm. yourself, how's everything? क्या काम कर रही हैं? कहाँ पे काम कर रही हैं? How's life? Then we'll start with the conversation. Okay, so basically, as you know, my name's Sana, or I'm a project manager. I have not started from my career from project management. It was a roller coaster ride, if considering my career. So I started. I always wanted to become a developer. Coding was my thing, but life has plans. So I switched my career to sales, or you can say business development. And then later on, after I guess I have worked in an innovation firm as well and in the startup companies as well. So after like I think 2 or 3 years, I switched my career back to project management. And initially, it was not a technical, on not on technical side. I was only playing a bridge between sales team and the production team. So my role was only to communicate with the clients or with the stakeholders and with the team. But later on, in my recent, you can say in past, I think 1 or 2 years, I have switched back to my original plan, and that's the technical side. So yeah, currently I'm working as a technical project manager, or you can say product manager, in a company named Mesotech. So, but we do cater clients from Saudi Arabia. So, if you have heard of e-mobility scooters or e-mobility services across the Middle East side, so we provide our services there. Perfect. Perfect. So, being as a layman, nothing to know about your field, मुझे ये बताइएगा कि what I see is I see a person who done their bachelor in computer sciences, started off with web Mhm. designing, moved towards business development, like 360 shift, and then taking a very Yeah, 360 shift back to project management. Starting yeah. off, मुझे ये बताइएगा यार, what is the key job description of a project manager? ठीक है, because people usually mismatch in product manager, प्रोजेक्ट मैनेजर Mhm. एंड प्रोडक्ट डिज़ाइनर्स, ठीक है? तो मुझे ये बताइएगा कि यार Yeah. प्रोजेक्ट मैनेजर का या टेक्निकल प्रोजेक्ट मैनेजर का बेसिकली की जॉब डिस्क्रिप्शन होती क्या है? क्योंकि आई एम प्रीटी मच श्योर देयर इज़ नो डिग्री दैट गिव यू अ डिग्री ऑफ कि ठीक है नाउ यू आर अ प्रोजेक्ट मैनेजर, ठीक है? वो आपको आहिस्ता-आहिस्ता सीखनी होती है। तो थोड़ा मुझे बताइएगा कि व्हाट आर द टेक्निकैलिटीज़ एंड व्हाट आर द थिंग्स रिक्वायर्ड टू बिकमिंग अ प्रोजेक्ट मैनेजर? ओके, सो प्रोजेक्ट मैनेजर की वैसे अब खैर डिग्रीज आ गई हैं मास्टर्स की, उसमें अगर आप जाके देखें इनिशियली नॉट इन पाकिस्तान इतनी कॉमन नहीं है। पाकिस्तान से बाहर जर्मनी को अगर आप एक्सप्लोर करें या यूके की साइड, यूएस की साइड पर अगर आप एक्सप्लोर करें तो वहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजर की काफ़ी सारी फील्ड्स हैं। और प्रोजेक्ट मैनेजर इट्स सेल्फ एक बहुत वास्ट फील्ड है। ये प्रोडक्ट मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, स्क्रम मास्टर्स, स्क्रम, आप कह लो कि स्प्रिंग डिज़ाइन वगैरह सब कुछ एक ही उसमें आ जाती है सारी। तो बेसिकली हमारा रोल ये होता है कि हम लोग स्टेक होल्डर्स के साथ कम्युनिकेट करते हैं। हम वी गेट द रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम द स्टेक होल्डर्स और यू कैन से क्लाइंट, एंड वी गेट थिंग्स डन। और हम बेसिकली उनको अलाइन करते हैं। वी ब्रेक थिंग्स इन डिफरेंट पार्ट्स, और यू कैन से मॉड्यूल्स के अंदर हम डिफरेंट चीज़ों को ब्रेक करके उसको फिर हम डिज़ाइन और डेवलप करवा के एंड देन वी डिलीवर इट टू द क्लाइंट। इनिशियली जो भी हमारा प्लान होता है, जो भी रिक्वायरमेंट गैदरिंग होती है, वो क्लाइंट साइड से हम गैदर करते हैं। उसके बाद हमारे पास मल्टीपल टीम्स होती हैं। टीम्स जो है, अच्छा, इट्स नॉट ओनली अबाउट द सॉफ्टवेयर और टेक्निकल साइड ओनली। वी डू हैव प्रोजेक्ट मैनेजर्स इन, लाइक आप अगर एक्सप्लोर करो तो हमारे पास कंस्ट्रक्शन साइट्स पे भी प्रोजेक्ट मैनेजर्स होते हैं, हमारे पास फिनटेक में भी प्रोजेक्ट मैनेजर्स होते हैं। तो हर तरह की फील्ड में एक बीच में एकदम मिडल मैन आप कह लें, द मिडल ब्रिज मैन होता है का रोल प्ले। बेसिकली। यस, यस, ब्रिज कहते हैं हम उसको। तो परफेक्ट। हम जो है हम ही करके वहाँ पे चीज़ों को कंप्लीट So करवा के बोलते हैं। if I'm not wrong, a project manager is basically a bridge between the company and the client, and they are giving the transparency कि इन timelines पे ये चीज़ें होती हैं, ठीक है? Perfect. अब दूसरा पॉइंट जो मुझे पूछना है वो ये बताइएगा कि you said that you wanted to become a web designer, ठीक है? And now you're working as a project manager, ठीक है? What
थिंग्स दैट यू हैव सीन कि यार अगर मैं ये चीज़ें पहले से देखती, तो मेरे लिए हेल्प आउट करती, हुँ, हुँ। ठीक है? क्योंकि जब आप अलग डिग्री पढ़कर आ रहे होते हैं, क्योंकि दिस इज़ अ वेरी कॉमन थिंग इन पाकिस्तान, क्योंकि लोग ज़्यादातर जो पढ़ते हैं वो उसी में ही एक्सेल करना चाहते हैं, ठीक है? समटाइम्स लाइफ हैपेंस और फिर आपको कोई चीज़ ड्राइव करनी पड़ती है और उसको आपको उस तरीके से देखना पड़ता है। सो व्हाट आर द key breakdowns, yeah, what are the key difficulties that you have seen in the tech world that you are in right now, because you don't have this हुँ, background, हुँ। ठीक है? लास्ट 5 से 10 सालों में, और अगर मैं बाहर की मार्केट की बात करूँ तो थोड़ा सा पहले, दे आर वेरी फार हुँ, हुँ। फ्रॉम पाकिस्तान, ठीक है? वहाँ पे टेक बहुत आगे जा रहा है, वहाँ पे चीज़ें बहुत आगे जा रही हैं, एंड आई एम प्रीटी मच श्योर वो बहुत फास्ट पेस एनवायरनमेंट में काम होता होगा। वहाँ पे चीज़ों के डिलिवरेबल्स बहुत तेज़ होते होंगे, एंड यू नीड टू कोप अप विद दोज़ थिंग्स। सो क्या चैलेंजेस फेस करे आपने कि यार ये चीज़ें अगर मुझे पहले पता होती, तो वो मेरे काम आती? कोई आउटकम्स आपने देखे हों कि यार इन चीज़ों को लोगों को, प्रोजेक्ट मैनेजर्स को बेसिकली ध्यान रखना चाहिए, जो कि इनिशियल लेवल पे और बाकी आगे ग्रोथ लेवल पे जाके उनकी मदद कर सकता है? अ, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, पाकिस्तान में जो है वो एक्सपोज़र की बहुत ज़्यादा कमी है। अभी हमारे मल्टीप्लिकेशंस मेरी कंपनी ने भी अरेंज करवाए थे। हमने जब मैं अपने से छोटे 8 5-6 साल छोटे बच्चों से जब बात करती हूँ, जो नर्सरी लेवल के बच्चे होते हैं, तो टेक साइड पे अगर आप देखें तो लोगों का ये एक पर्सपेक्टिव बना हुआ है कि टेक साइड है तो मे बी शायद सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होगी, मे बी शायद आप जो है वो मोबाइल एप्लीकेशंस वगैरह डेवलप करेंगे। हमारे पास टेक साइड पे मल्टीपल और भी डोमेन्स हैं, जैसे कि हमारे पास ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, क्वालिटी एश्योरेंस वाली चीज़ें होती हैं, क्यूए की फील्ड होती हैं। तो इनका एक्सपोज़र या इनकी जो नॉलेज होती है ना, वो हमें यूनिवर्सिटी लेवल पे नहीं दी जाती है। हमें बस आपको एक बिल्कुल एक पैटर्न बना हुआ है, उसी पैटर्न को फ़ॉलो करते हुए जो है वो आगे चलाते हैं स्टूडेंट्स को, एंड देन उसके बाद जब हम फाइनल ईयर्स में होते हैं और बच्चे बिल्कुल ब्लैंक होते हैं कि भई अब क्या करना है हमें। तो अभी रिसेंटली मेरा एक सेशन हुआ है हमारी कंपनी में ही, कुछ यूनिवर्सिटीज़ की स्टूडेंट आई हुई थी और दे डिड नॉट हैव एनी आइडिया अबाउट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और क्वालिटी एश्योरेंस, और वो सब सीएस की स्टूडेंट्स थी और वो ये माइंडसेट लेके आई हुई थी कि नहीं शायद हमें फ्रंट एंड डेवलपर बनना है या हमें बैक एंड डेवलपमेंट में जाना है। तो और कोडिंग से किसी को इतना प्यार, आज ही अगर आप एआई का तो दौर आ गया है, तो वो कोडिंग जो है ना उससे अक्सर लड़कियाँ भागती हैं कि भाई हम जो है कुछ शॉर्टकट देखें, या लड़कियों के अंदर मेरे ख्याल से कि जो है ना ये एक इनबिल्ट क्वालिटी होती है मैनेज करने की चीज़ें। उनको ये चीज़ें नहीं दिया जाता, एक्सपोज़र नहीं दिया जाता। तो आई बिलीव मुझे ये वाली फ़ील्ड ये कैसे मैंने खुद कैसे डेवलप की, मैंने जब मैं बिज़नेस डेवलपमेंट में गई थी, तो मेनली हमारा काम ये होता था कि हम लोग क्लाइंट से रिक्वायरमेंट गैदर करके हम प्रोडक्शन टीम को देते थे। अब मैंने स्टार्टअप कंपनीज़ में काम किया था उस टाइम पे। तो स्टार्टअप कंपनीज़ में तो आपको पता है कि आप ही एचआर भी हैं, आप ही डेवलपर भी, प्रोडक्शन में भी आप हैं, सेल्स में भी आप हैं, तो यू प्ले मल्टीपल रोल्स देयर। तो उस टाइम पे जो है ना ये चीज़ जो है हमारे पास मैंने एक्सप्लोर की कि अच्छा ठीक है, हमें क्लाइंट से रिक्वायरमेंट गैदर करके आगे दे के काम करवा के वो वाला रोल भी प्ले करना हो। तो यूजुअली पाकिस्तान में भी जो बिज़नेस डेवलपर्स होते हैं, वो थोड़ा-थोड़ा प्रोजेक्ट मैनेजर्स का भी काम कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ मेरे ख़्याल से मुझे काफ़ी टाइम लग गया। 3 साल तो मैंने बिज़नेस डेवलपमेंट में दिए, फिर उसके बाद जो है साथ-साथ मैंने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्टार्ट कर ली। और अब जाके जो 2 साल मैंने बिल्कुल टेक साइड पे दिए हैं, तो मैंने इस चीज़ को एक्सप्लोर किया है कि अगर ये चीज़ मुझे आज से 5 साल पहले पता चलती, हुँ। तो मे बी शायद अपने करियर में इससे भी ज़्यादा ग्रो कर चुकी होती। तो ये वाली चीज़ें हैं। इनिशियली प्लान तो ऑब्वियसली इंसान के कुछ और होते हैं, फेयर इनफ, लेकिन फेयर इनफ, फेयर इनफ। इसमें एक और चीज़ होती है कि यार व्हाट आई पर्सनली बिलीव, बीइंग अ प्रोजेक्ट मैनेजर इज़ नॉट only managing the projects, yeah, managing the work, it's also getting the right mindset, ठीक है? क्योंकि आप दोनों तरफ आपकी दोनों तरफ एआई नहीं है, मतलब आप जिसके लिए बना रहे हो दैट्स आल्सो ह्यूमन, जो बना रहा है वो भी ह्यूमन है, ठीक है? और कभी-कभार आपको इस वाली साइड के बहुत अजीबो-गरीब बातें सुननी पड़ती हैं और कभी-कभार आपको क्लाइंट साइड की सुननी पड़ती है, एंड यू नीड टू मेक अ स्पेसिफिक हार्मनी जहाँ पे दोनों चीज़ें स्टेबल रहें, ठीक है? क्योंकि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूँ, अबाउट इट्स नॉट अबाउट वर्किंग इन एन एनवायरनमेंट जहाँ पे आपके पास फाइवर या अपवर्क से कोई काम आता है और जो कि 2-3 दिन में खत्म हो जाएगा। इट्स ऑनगोइंग थिंग, इट्स समटाइम इट्स मे बी 6 मंथ्स, समटाइम इट मे बी अ ईयर, समटाइम इट मे मोर देन दैट, मोर देन ईयर, ठीक है? हाउ डू यू सी कि साइकोलॉजी कितना मैटर करती है, ठीक है? क्योंकि दिस इज़ वन ऑफ द कोर फील्ड जो कि मैंने देखी है, जो कि
है टेक्निकल, लेकिन इसके अंदर आपको पब्लिक स्पीकिंग आनी चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि आपको काम किस तरीके से निकलवाना है। आपको ये पता होना चाहिए कि डिलिवरेबल्स होने कैसे हैं, ठीक है? क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे, मे बी यू आर प्रिविलेज्ड इनफ दैट यू आर वर्किंग फॉर अ कंपनी दैट इज़ वर्किंग फॉर क्लाइंट आउटसाइड पाकिस्तान। बट अगर मैं बात करता हूँ पाकिस्तान की, तो यहाँ पे क्लाइंट ही सब कुछ है। क्लाइंट कहता है कि यार ये चीज़ हुँ, ऐसी हुँ। होनी है, तो समटाइम्स सीईओज़, बॉसेस, हेड्स ऑल्सो से कि ठीक है, इसको ऐसे ही कर दो, ठीक है? व्हाट आर द की पॉइंटर्स दैट यू थिंक कि आप प्रोजेक्ट मैनेजर्स या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में जो लोग जाना चाहते हैं उनको बताना चाहेंगे? क्योंकि आई एम प्रीटी मच श्योर, अगर आपने जैसा भी बताया कि सीएस स्टूडेंट्स को कोई अंदाजा नहीं होता, तो अगर कोई और बंदा किसी और फील्ड से आता है, मे बी इट्स फ्रॉम बीबीए और फ्रॉम एनी अदर फील्ड्स, ठीक है, साइकोलॉजी से भी आता है, तो उसके लिए ये समझना बहुत ज़रूरी होता है कि आपको दोनों चीज़ों में बैलेंस रखना है, ठीक है? ये कहने को बड़ी आसान सी फ़ील होती है, जैसे अब मैंने बोला कि इट्स लाइक अ ब्रिज, आपको करना क्या है, यहाँ से चीज़ें लेनी है और वहाँ बता देनी है। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड द फैक्ट कि वहाँ पे दोनों चीज़ों को आपको मैनेज करना है। व्हाट आर द की पॉइंटर्स दैट यू हैव सीन इन योर ओवरऑल एक्सपीरियंस कि इस इन चीज़ों का अगर लोग ख़्याल रखें, तो आप दोनों चीज़ों को स्टेबल रख सकते हैं और ना वो आपके काम को इम्पैक्ट करेगी, ना आपके परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट करेगी। क्योंकि व्हाट आई सी इज़ प्रोजेक्ट मैनेजर्स का जो पर्सनल केपीआई होता है, वो किसी और पे ही रिलाई कर रहा होता है, ठीक है? हुँ, हुँ। अगर किसी भी चीज़ के डिलिवरेबल्स नहीं जाएँगे, तो शायद उससे ज़्यादा केपीआई प्रोजेक्ट मैनेजर्स के होंगे, क्योंकि ही इज़ द बेसिकली फ्रंट फेस ऑफ द कंपनी, जो कि क्लाइंट्स को डायरेक्ट देख रहा होता है। तो व्हाट आर द की आउटपुट्स जो आपने देखे हैं? इन चीज़ों को लोगों को ख़्याल रखना चाहिए, ताकि उनको वो मसले ना हों, जिसकी वज़ह से प्रोजेक्ट टाइमली डिलीवर ना हो रहा हो या कुछ भी ऐसी चीज़ें। देखिए प्रोजेक्ट को सबसे पहले एनालिसिस उसकी बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। हम अगर कोई भी अगर आप मेरे पास कोई वेबसाइट आ रही है, तो अब मुझे ये पता होना चाहिए कि ये वेबसाइट जो है, ये कितने टाइम में बन सकती है और हम हमेशा से ना क्या करते हैं कि हम बफर टाइम रखते हैं बीच में। बफर टाइम हम उसको कहते हैं कि अगर लेट्स से कि मैंने अपनी टीम से कोई टेक्निकल साइड पे भी अगर आप गए ना, तो आपका ये है कि आपको हमेशा से अपनी डेवलपर्स टीम के साथ हमेशा से आपको डिस्कशन करनी पड़ती है। कि यार ये एक नया फीचर आया है या एक नया मॉड्यूल आया है, इसको हमने डेवलप करना है। तो क्या है, समटाइम्स ऐसा होता है कि हमारे जो क्लाइंट होते हैं, क्लाइंट साइड से हमें बिल्कुल भी लीनियंसी नहीं मिलती। अच्छा, अभी क्लाइंट टू क्लाइंट भी वेरी करता है। मैंने मल्टीपल मार्केट्स में काम किया है और इट्स बीन लाइक 2 इयर्स, तो मैं अब सऊदी मार्केट में काम कर रही हूँ। तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू वर्क विद द सऊदी क्लाइंट्स। हमारे यूएस, यूके वगैरह क्लाइंट्स को तो चलो समझ में आ जाते हैं। वो लोग जो हैं अंडरस्टैंड करते हैं इस चीज़ को। बट अगर मैं मिडल ईस्ट की साइड पे आके इस चीज़ को देखूँ ना, सऊदी स्पेशली, तो इनका तो ये होता है कि भाई आज मैंने ख्वाब देखा है कि एक ऐप बनेगी और कल सुबह उठ के मैं अपनी टीम से एक्सपेक्ट कर रही होंगी कि भाई ये बन जाएगी ऐप, ठीक है? तो उस चीज़ की एनालिसिस मैं पहले क्या करती थी, क्लाइंट साइड से क्लाइंट की रिक्वायरमेंट ले ली। बहुत सॉफ्ट नोट पे बात करनी पड़ती है हमेशा से और हम दोनों साइड पे बना के रखनी पड़ती है। टीम से भी, क्योंकि ऑब्वियसली आप वहाँ पे ज़्यादा हार्ड हो जाओगे तो वो आपको काम नहीं करके देंगे, वो वाली चीज़ हो जाएगी। अगर आप क्लाइंट के साथ हार्ड हो जाओगे तो यू माइट लूज़ द क्लाइंट। तो बहुत बैलेंस जो है ना, वो कभी-कभार मुश्किल भी हो जाता है, लेकिन वही बात है कि हम लोग फिर बफर टाइम रखते हैं हमेशा से। हम क्या करते हैं कि हम अपनी टीम से डिस्कस करते हैं पहले, 2 स्प्रिंट मीटिंग्स वगैरह होती हैं। अब क्या हो रहा है कि अब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में हमारे पास एजाइल मेथड्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस में आ गए। अच्छा, एजाइल मेथड्स में हम लोग 2-2 वीक्स के हिसाब से टास्क को डिवाइड करते हैं। कोई भी काम आ गया, अगर इफ इट इज़ प्रोजेक्ट बेस्ड कंपनी है तो हमारे पास मल्टीपल प्रोजेक्ट्स आते हैं, अगर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है तो हमारे पास मल्टीपल फीचर्स वगैरह आते हैं। तो हम जो है उन टास्क को डिवाइड करते हैं, अपनी टीम के साथ डिस्कस करते हैं। इफ मेरी टीम ने बोला कि ये वेबसाइट है, ये 2 दिन में बनेगी, तो मैं क्लाइंट को कभी भी 2 दिन का टाइम नहीं दूँगी, मैं क्लाइंट को हमेशा 4 दिन का बोलूँगी। वो 2 दिन जो है वो मैं बफर टाइम रखूँगी। कभी-कभार क्लाइंट हमारी टीम की साइड से कोई मसला हो सकता है, कोई टेक्निकल फॉल्ट्स हो सकते हैं, टेस्टिंग में कोई इश्यूज़ आ सकते हैं। तो इस तरह से जो है वो हमारी जो कमिटमेंट्स होती हैं, वो बहुत ज़्यादा आगे पीछे नहीं होती, क्योंकि ऑलरेडी हमने बफर टाइम तो दिया हुआ ही होता है। तो वी ट्राई कि हम उसी बफर टाइम के अंदर रहते हुए ही अपनी डिलीवरी करें। मैंने मेरी टीम में इस तरह के बहुत सारे सिनेरियोज़ हुए हैं, क्योंकि मैंने काफ़ी टीम्स के साथ काम कर लिया है, मार्केटिंग टीम के साथ भी कर लिया है, सेल्स के साथ भी कर लिया है, डिज़ाइनर्स के साथ भी कर लिया है। बट जो डेवलपर्स होते हैं ना, वो थोड़े-से रिजिड हो जाते हैं अपनी चीज़ों को लेके। तो स्पेशली इफ यू डोंट हैव टेक्निकल बैकग्राउंड, तो आपको जो है ना ये वाली चीज़ें, एक काम है अगर 2 घंटे का है और उनको पता है कि आपके पास टेक्निकल नॉलेज नहीं है, तो वो आपको बोलेंगे कि ये 2 दिन का काम है। तो ये है, ये गैप आप कैसे फिल कर सकते हो? आप ऐसे फिल कर सकते हो कि आप साथ-साथ तो मैनेजमेंट कर ही रहे हैं, लेकिन सेल्फ लर्निंग जो है ना, मैं अभी भी
एक कोर्स में एनरोल हूँ, मैं अभी भी 3-4 चीज़ें पढ़ रही होती हूँ कि भाई ताकि कल को अगर मुझे कहीं आंसर देना है तो एटलीस्ट आई शुड नो कि मैं आगे क्या काम करवा रही हूँ। तो ये चीज़ें हैं और बफर टाइम आई थिंक रखें तो शायद चीज़ें मैनेज हो जाती और बैलेंस बन जाता है फिर चीज़ों को लेके और फिर टीम की जो साइकोलॉजी है ना वो भी अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। अब आपकी टीम में 10 तरह के लोग होंगे, हर 10 ब्रेन्स हैं, हर बंदा अलग हिसाब से सोचता है। तो अगर मैं किसी से स्ट्रिक्ट होके काम करवा रही हूँ, मेबी शायद जो सेकंड बंदा है वो स्ट्रिक्ट होके आपकी बात ना सुने। हुँ। तो उस तरीके से आपने डील करना है, ये कि टाइम आपकी टीम की तरह के फिर चीज़ें समझ में आती हैं कि भई इन चीज़ों को हम कहते हैं रिस्क एनालिसिस आप करते हो प्रोजेक्ट के हिसाब से भी और ये सारी एनालिसिस नहीं आ जाती चीज़ें फिर जब हम एनालाइज़ कर लेते हैं चीज़ों को तो वो फिर सही हिसाब से बैलेंस हो जाती है। ठीक हो गया, ये तो बड़ी आपने अच्छी चीज़ें बता दी प्रोजेक्ट मैनेजर्स की, बड़ा अच्छा लग रहा है कि प्रोजेक्ट मैनेजर बनना भी आसान होगा। लेट्स टॉक समथिंग सीरियसली कि जिसमें देयर शुड बी अ हार्श रियलिटी इन पाकिस्तान, ठीक है? एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट कि यहाँ पे अगर आपको इतना प्रिविलेज दिया जाता है कि आप किसी चीज़ को खुद से रन डाउन करें, तो अगर वो चीज़ बैकफायर करती है तो आई एम प्रीटी मच श्योर प्रोजेक्ट मैनेजर्स आर द वन हूज़ गोना बी रिफ्लेक्टिंग ऑन। मुझे ये बताना है कि हुँ। अगर पाकिस्तानी मार्केट में राइट नाउ प्रोजेक्ट मैनेजर्स का क्या सूरत-ए-हाल है? व्हाट आर द की एलिमेंट्स जहाँ पे कंपनी क्योंकि हमारे यहाँ 2 तरीके की चीज़ें हम देख रहे होते हैं पाकिस्तान में स्पेसिफिकली। एक आपके पास वो स्टार्टअप्स हैं जिनके पास फंड तो है बट दे डोंट हैव उनको ऐसा लगता है कि अच्छे लोग हायर करने से चीज़ चल जाएगी। एंड देन देयर आर कंपनीज़ जिनके पास फंड थोड़े कम है लेकिन वो चीज़ों को स्टेबल लेके चल रहे होते हैं। ठीक है? वी हैव सीन अ लॉट ऑफ स्टार्टअप्स इन पाकिस्तान इन लास्ट 2-3 इयर्स जो एकदम से आए और उन्होंने बहुत ही जल्दी अर्ली एग्ज़िट ले लिया। ठीक है? हुँ, हमें ऐसा लग रहा होता है कि यार अच्छी कंपनी से बंदे हायर कर लेना, ठीक है, वो स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाएगा। बट आई एम प्रीटी मच श्योर कि प्रोजेक्ट मैनेजर्स की हार्श रियलिटी भी कुछ ना कुछ होगी कि यार जॉब मार्केट किस तरीके से है, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। अ, क्योंकि प्रोजेक्ट मैनेजर को इनडायरेक्टली या डायरेक्टली तौर पे प्रोजेक्ट की ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है? हुँ, सो यू कांट कंपनी कांट से कि यार ये प्रोजेक्ट तो हमें इतने पैसे ही नहीं दे रहा। उसको पता होता है कि भाई ये कितना बड़ा प्रोजेक्ट है, कितना लंबा प्रोजेक्ट है। व्हाट आर द पॉइंटर्स दैट यू हैव सीन कि यार पाकिस्तान में अगर प्रोजेक्ट मैनेजर या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की साइड पे रहना है, तो आपको ये चीज़ें करनी है, ठीक है? और इसके साथ मुझे एक और चीज़ बताइएगा, इज़ इट अ फील्ड वेयर यू डू फ्रीलांस एज़ वेल? लाइक द इज़ दिस समथिंग लाइक क्या प्रोजेक्ट मैनेजिंग एज़ अ फ्रीलांसिंग भी कर रहे होते हैं? बिकॉज़ आई डोंट नो अबाउट दैट थिंग अबाउट इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट तो इन दोनों चीज़ों के बारे में थोड़ा मुझे बताओ। अच्छा, देखिए पाकिस्तान में तो प्रोजेक्ट मैनेजर बनना इज़ लाइक कि आपको ऑल-राउंडर होना पड़ेगा। आप सिर्फ़ प्रोजेक्ट मैनेजर नहीं हो, फिर आप कस्टमर सपोर्ट रिप्रेजेंटेटिव भी हो, आपको डेटा एंट्री का काम भी करना है, आपको जो है टेस्टिंग QA वगैरह सब आपको ही फाइनल करना है। स्प्रिंट डिज़ाइन भी आपको करना है, स्क्रम मास्टर का भी आपको काम करना है। अगर मेरी कुछ फ्रेंड्स हैं जो जर्मनी में होती हैं, तो वो बताती हैं कि भई प्रोजेक्ट मैनेजर जो है, वहाँ पे बहुत डिफरेंट डोमेन है, वहाँ पे बहुत डिफरेंट तरीके से उस चीज़ को लिया जाता है। आपकी टेक साइड पे डेवलपर से डायरेक्टली कम्युनिकेशन नहीं होती है, जो वहाँ का कल्चर है। बट यहाँ पे क्या है कि आप जो है ना, हर चीज़ को आपको ही मैनेज करना है, ठीक है? तो यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग। तो एक तो ये है, फिर केपीआई डिज़ाइन वगैरह ये सब प्रोजेक्ट मैनेजर का काम है। तो पाकिस्तान में अगर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में रहना है, तो यू हैव टू बी ऑल राउंडर और आपको ज़्यादा एक्सपेक्टेशन भी नहीं रखनी। क्योंकि हमारी फील्ड में क्या है कि आपका 5-6 साल का एक्सपीरियंस है, बट आप सैलरी के अपने डेवलपर से कम ले रहे हो। तो ये भी एक बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक है हमारी फील्ड का, कि जो सीनियर लेवल का डेवलपर होता है या आपकी टीम में ही जो 5-6 साल आपका एक्सपीरियंस 5 साल का होगा और डेवलपर्स का जो 3 साल का एक्सपीरियंस होगा ना, वो सेम सैलरी पे बैठेगा। ठीक है, बेशक आप उनके मैनेजर हैं, जो भी है, बट स्टिल आपके पास ये वाली एक हार्श रियलिटी है जो आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। ठीक है और सेकंड सेकंड एक पॉइंट चीज़ आपने मुझे क्या पूछा था? एक एक चीज़ हाँ, मैं वो भी पूछता हूँ, एक चीज़ मुझे और बताइएगा कि इट्स नॉट मैनेजमेंट, ठीक है? मतलब प्रोजेक्ट मैनेजर के नाम में मैनेजर है क्योंकि वो प्रोजेक्ट को मैनेज कर रहा है, बट वो डेवलपर्स का डायरेक्ट मैनेजर नहीं है, ठीक है? मुझे मुझे ऐसा लगता है क्योंकि वो बेसिकली कम्युनिकेशन गैप को कम करने के लिए क्योंकि अगर डेवलपर खुद ही क्लाइंट से बात कर रहा होगा तो डेवलपर काम कब करेगा, ठीक है? तो एक तो ये चीज़ है कि ये बात बिल्कुल ठीक है कि आपको एक्सपीरियंस टू एक्सपीरियंस
बहुत सारी चीज़ें मसला करी होती है। मुझे ऐसा लग रहा है जो अभी आपने बोला कि यार डेवलपर्स की सैलरी ज़्यादा होती है, क्योंकि हमारे यहाँ अभी भी ये मिथ है कि कंपनीज़ में उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है जिससे प्रोडक्शन हो रही होती है, ठीक है? उसको नहीं जिससे मैनेजिंग हो रही होती है। दूसरी चीज़ जो मैंने आपसे पूछा था कि यार कि हार्श रियलिटी में दूसरी चीज़ ये है कि भाई मसले कहाँ-कहाँ आते हैं, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए क्या स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स हैं कि आपको ये चीज़ आनी चाहिए? ठीक है, आप किसी को जाके ये तो नहीं कह सकते कि यार मुझे आई एम प्रीटी मच श्योर यू हैव यूज्ड द वर्ड स्क्रम, तो मुझे एक तो वो भी बताएँ, क्योंकि आई एम 110% श्योर अ लॉट ऑफ पीपल डोंट नो। मुझे नहीं पता स्क्रम क्या करता है, या स्क्रम है क्या चीज़, ठीक है? सो व्हाट आर द की फीचर्स अ प्रोजेक्ट मैनेजर शुड नो जब वो जाए, ठीक है? तो ये बोले कि यार मुझे ये चीज़ें आती हैं जिसकी वजह से आई कैन डू द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। अच्छा, पाकिस्तान में देखिए अभी इंटरव्यू जो चल रहे होते हैं ना, तो हम लोग पहला सवाल तो सिर्फ़ टूल्स के हिसाब से करते हैं कि भई आपने कितने नंबर ऑफ़ कितने टूल्स आपने यूज़ किए हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के टूल्स हैं बेसिकली, मल्टीपल्स हुँ, जिरा हो गया, क्लिकअप वगैरह हो गया, ये आपको यूज़ करने आने चाहिए। सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट की फीचर है, आपको इफ यू वांट टू गेट अ जॉब इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, तो सबसे पहली चीज़ तो ये आ जाती है। सेकंड जो कम्युनिकेशन ऑब्वियसली ये सब ज़्यादा मैटर भी करती है कि आपको कम्युनिकेशन करना आनी चाहिए। फिर हुँ, पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं और मेनली पाकिस्तान में जो है ना ज़्यादातर जो प्रोजेक्ट मैनेजर से एक्सपेक्ट किया जाता है वो प्रोजेक्ट मैनेजर प्लस लीड जनरेशन वाला बंदा भी होता है। अब वो लीड जनरेशन क्या होता है कि भाई सेल्स वाले तो क्लाइंट के साथ डायरेक्टली डील कर रहे होते हैं। इफ यू हैव अ क्लाइंट तो आपको उससे अपसेल करनी होती है मेनली। तो ये वाला भी एक फीचर किया जाता है और वो ऑब्वियसली आपकी कम्युनिकेशन के हिसाब से ही नोटिस किया जाता है कि इफ यू हैव अ गुड कम्युनिकेशन विद द क्लाइंट साइड तो आप ये वाली डिलिवरेबल्स कर सकते हो कि आप मज़ीद जो है उनसे अपसेल ले सकते हो या मज़ीद प्रोजेक्ट्स ग्रैब कर सकते हो या अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास कोई आया है कि कहता है कि भई मुझे वेबसाइट बनवानी है, तो मैं वेबसाइट के कंटेंट का प्रोजेक्ट भी मैं ले लूँ उससे। तो ये होती है लीड जनरेशन और हुँ। ये आपके पास जब आप क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन वाली चीज़ आपको आती है, तो आप ये वाली चीज़ें भी कर सकते हो। तो ये वाली एक चीज़ है। फिर सेकंड चीज़ आपको केपीआईज़ का पता होना चाहिए कि भाई केपीआईज़ क्या होती हैं, स्टोरी पॉइंट्स क्या होते हैं। और आप लोग वही स्टोरी पॉइंट्स ऑब्वियसली स्टोरीज़ क्या होती हैं, टास्क चाइल्ड इश्यूज़ क्या होते हैं, इन सब की बेसिक थोड़ी-सी नॉलेज अगर है आपको तो यू कैन ईज़िली गेट अ जॉब इन प्रोजेक्ट ठीक है। और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के हमारे पास डिफरेंट मेथड्स होते हैं बेसिकली वाटरफॉल मेथड होता है एक और एक एजाइल मेथड होता है। तो ये बेसिकली क्या ये आपको मैं थोड़ा-सा शॉर्ट में अच्छा, एक्सप्लेन बीइंग अ लेमैन अभी मेरा जो सवाल है वो ये है कि दीज़ आर द थिंग्स जो कि आपको नहीं सिखाई जाती यूनिवर्सिटी के अंदर, ठीक है? तो ये लर्निंग एंड डेवलपमेंट होती कहाँ पर है, ठीक है? क्योंकि आप जो चीज़ें बता रही हैं, आई एम प्रीटी मच श्योर आप तो इतने साल से काम कर रही हैं, तो आपको ये चीज़ों का पता चल गया है, ठीक है? बट लर्निंग एंड डेवलपमेंट के लिए एक बंदे को क्या करना चाहिए? आई एम प्रीटी मच श्योर जैसे भी आपने बोला कि यार आप भी खुद साथ-साथ देख रहे हो, तो हम अगर मैं अपनी फील्ड की बात करूँ, वी आर डूइंग डिफरेंट कोर्सेज़ टू जस्ट टू गेट एन अपडेट, क्योंकि आपको नहीं पता कि आप कल उठते हो और एक और नया प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का टूल आ जाता है जो आपको सीखना पड़ता है, या जिस क्लाइंट से आप बात कर रहे हो आई एम प्रीटी मच श्योर कि वो जीरा या फिग्मा या बाकी जितने भी टूल्स होते हैं वो इसलिए आने चाहिए क्योंकि क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट है, अगर क्लाइंट को जीरा यूज़ करना है और आपको नहीं आता तो आपको सीखना हुँ, पड़ेगा। आप क्लाइंट को ये नहीं कह सकते कि यार मैं क्लिकअप पे काम करना चाहता हूँ, ठीक है? लर्निंग एंड डेवलपमेंट का क्या स्टॉप है इसमें, ठीक है? क्योंकि आप ग्रेजुएट हुए सीएस पढ़ के, तो आपको ये चीज़ें तो नहीं आती, ठीक है? और आई एम प्रीटी मच श्योर कि इनिशियल लेवल पे किसी को ये भी चीज़ें नहीं पता होंगी कि जीरा क्या होता है और क्लिकअप क्या होता है और जो भी और टूल्स हैं, ठीक है? कौन से ऐसे प्लेटफ़ॉर्म हैं जो आप कहते हो कि यार इन प्लेटफ़ॉर्म्स को यूनिवर्सिटी के अंदर होना चाहिए नंबर 1, या बच्चों को एटलीस्ट अपनी ग्रेजुएशन के वक़्त में इन चीज़ों को एक्सप्लोर कर लेना चाहिए? क्योंकि हमारे यहाँ तो ना 2 वाला 1 और 0 वाला हिसाब है। हमारे यहाँ एक स्टूडेंट वो हैं जो 4.0 जीपीए लेकर आते हैं, फुल। और मैं इसमें ये नहीं कह रहा कि लाना नहीं चाहिए, भई लानी चाहिए, जिसको लानी अच्छी बात है। बट एट द एंड ऑफ द डे योर जॉब इज़ नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर सीजीपीएस, ठीक है? अनटिल और अनलेस के अंदर आपके पास वो कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है, या आपके पास वो टैलेंट नहीं है जिस टैलेंट से आप ऊपर जाएँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आप अपनी नौकरी में एक वक़्त तक एक्सेल करते हैं अपने अपने कोर काम की वजह से। उसके बाद आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आनी चाहिए, आपको डिलिवरेबल्स कैसे देने हैं, कम्युनिकेशन कैसे होती है, आपको कम्युनिकेट कैसे करना है, इस वजह से आप ऊपर जाएँगे, ठीक है? तो अब आप लर्निंग एंड डेवलपमेंट को किस तरीके से देखते हो? ठीक है? कौन से ऐसे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं
I'm pretty much sure ऐसे प्लेटफॉर्म्स आपके भी होंगे, क्योंकि जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ, हमारे प्लेटफॉर्म में वी हैव डोमेस्टिका, स्कूल ऑफ मोशन, मोशन डिजाइन स्कूल, क्लोसो एकेडमी, मल्टीपल मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स टू लर्न फ्रॉम इट, ठीक है, जहाँ पे आप अप टू डेटेड रहते हो, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने आपको कोई एनडीए तो साइन करके दिया हुआ नहीं है कि भाई आपने अगर हमसे डिग्री ली है तो आप एक्स वाई जी कंपनी के साथ काम करेंगे ही करेंगे, ठीक है। हुँ। व्हाट आर द प्लेटफॉर्म्स दैट यू यूज दैट यू गोना टेल टू ऑडियंस कि यार ये चीज़ें इनको एक्सप्लोर करो, ताकि इनिशियल लेवल पे आपको ये चीज़ें पहले से पता हो, ताकि आप एटलीस्ट अपने इंटरव्यू में ही एक स्टेप ऊपर हो। कोर्सेरा है हमारे पास, यूडेमी है, कोर्सेरा है और हम पाकिस्तान में वैसे अब जिस तरह हैं मल्टीपल, अब इनिशियली यूनिवर्सिटीज़ में थोड़ी-सी नॉलेज तो दी दी जाती है, जो अभी मैं जिस तरह आपसे मेथड्स की बात कर रही थी, तो यूनिवर्सिटी लेवल पे ही पढ़ाया जाता है, बट वो सिर्फ़ थ्योरी के हद तक ही होता है। तो ठीक है। अगर आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को थोड़ा-सा फर्दर और एक्सप्लोर करना है, तो उसके लिए हमारे पास सबसे बेस्ट तो कोर्सेरा और यूडेमी है प्लेटफ़ॉर्म्स। हुँ, और हमारी एक इंटरनेशनल सर्टिफ़िकेशन होती है जो कि यूएस पे आपकी एग्ज़ाम होता है, पीएमपी की सर्टिफ़िकेशन होती है, सिक्स सिग्मा उसके बारे में होता है। ये सब जो है इनकी सबकी प्रैक्टिस जो है, वो जो इनिशियल कोर्सेज़ होते हैं, ये आपको वो एग्ज़ाम देने के लिए जो एलिजिबल आपका क्राइटेरिया है, वो कोर्स की हुँ, रिक्वायरमेंट ही आपकी यूडेमी या कोर्सेरा से कंप्लीट हो जाती है। हुँ। 35 आवर्स का आपको एक कोर्स करना पड़ता है एंड देन यू आर एलिजिबल कि आप जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे एक सर्टिफ़िकेशन कर सको। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इस तरह के प्लेटफ़ॉर्म्स पे अवेलेबल होती हैं और वहाँ यहाँ से हम लोग कर सकते हैं इन चीज़ों ठीक को। हो गया। इसके बाद एक और चीज़ है जो मेरे दिमाग में अभी आ रही है, यू आल्सो पॉइंटेड आउट इन योर पॉइंटर्स, हैविंग अ मेंटर और बीइंग अ मेंटर, ठीक है? हुँ, व्हाट आई पर्सनली बिलीव कि लोगों को मसला ये होता है कि हमारे यहाँ आप जिस जगह पर होते हैं, आप वो काम कर रहे होते हैं, आपके पास मेंटोर्स नहीं होते, ठीक है? या आप मेंटोर्स ढूँढते नहीं हैं, ठीक है? क्योंकि अगर मैं इसकी एग्ज़ाम्पल ये देता हूँ कि अगर मुझे मोशन डिज़ाइन पढ़ना था, तो मैंने पहले देखा यार मैं किन लोगों को फ़ॉलो करूँ, जो मुझसे बहुत अच्छा हुँ, काम कर रहे हैं, जिन जैसा काम मैं करना चाहता हूँ, ठीक है? सो आप क्योंकि करियर काउंसलिंग तो कोई है नहीं हमारे यहाँ, ठीक है? हुँ, अगर मैं अभी भी किसी लड़की से स्पेसिफिकली लड़की से पूछूं जो बीएस कर रही होंगी, तो कोई शायद ही 5 या 6% लड़कियां होंगी जो कहेंगी हम खुशी से बीएस कर रहे हैं, ठीक है। बाकियों के साथ कोई ना कोई हादसा ही हुआ होगा, ठीक है, या तो वो मेडिकल नहीं पढ़ पा रही होंगी, ठीक है, तो मेडिकल नहीं पढ़ा तो फार्म डी में चले गया, फार्म डी नहीं तो वाइस वर्सा कुछ ना कुछ करके आप कर लेते हो, ठीक है। लोगों का मसला ये होता है, लोग ना अपनी डिग्री पे बहुत रिलाय करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि भाई ठीक है, लाइफ इज़ लाइक दैट, जैसा आपने बोला कि ज़रूरी नहीं है आप जो प्लान करें वैसे ही चले, ठीक है? समटाइम्स यू नीड टू गो विद द फ्लो, समटाइम्स यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आप जिस जगह पे हैं, आपको वहाँ पे किस तरीके से एक्सेल करना है, और कुछ टाइम बाद आपको लगता है कि यार वो चीज़ ठीक है। तो मुझे ये बताइएगा कि यार जो आखिरी चीज़ मैं पूछना चाहूँगा वो ये है कि यार करियर गाइडेंस पे आप किस तरीके से पॉइंट आउट करते हो? आई एम प्रीटी मच श्योर यू हैव मेंटोर्स, आई एम प्रीटी मच श्योर आप बहुत सारे लोगों के मेंटोर्स होंगे। तो कौन से ऐसे की पॉइंटर्स हैं कि अगर आप बीएस, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, डेवलपमेंट इस साइड से डिपेंड करते हो, तो यार इन चीज़ों को अपनी लाइफ में रखो ताकि चीज़ें पहले से सॉर्टेड रहें, क्योंकि इकोनॉमिकल फैक्टर के हिसाब से पाकिस्तान वैसे भी इतना स्टेबल नहीं है, ठीक है? अब हायरिंग इस तरीके से हो गई है कि अगर आप किसी को जाके बोलते हैं कि यार फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 1 लाख रुपए लूँगा, ठीक है? तो हुँ, 80,000 में काम करने वाले 10 लोग पहले से खड़े हुए हैं, 70,000 में काम करने वाले पहले से खड़े हुए हैं, और कभी-कभार कंपनी को ये मैटर भी नहीं करता कि क्योंकि बहुत कम ऐसी कंपनीज़ हैं, जो ये देख रही होती हैं, हुँ, ठीक है? होंगी अच्छी कंपनीज़ हैं, बुरी कंपनीज़ भी हैं, बट ज़रूरी नहीं है कि आपका बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनका स्टार्ट बहुत अच्छी कंपनीज़ से होता है, उनको बहुत अच्छे मेंटोर्स मिलते हैं, वो उसी तरीके से एक्सेल करते हैं। बट उसका ग्राफ बहुत कम हो सकता है, क्योंकि हर बंदा अगर एक बच्चा ग्रेजुएट हो रहा है तो उसके साथ 40 बच्चे और ग्रेजुएट हो रहे हैं, उन 40 को नौकरी चाहिए, इतनी तो नौकरियां पाकिस्तान में नहीं हुँ, है, ठीक है। फिर आप कुछ लोग बहुत इनिशियल लेवल पे छोटी एजेंसीज में चले जाते हैं और वहां से काम स्टार्ट करते हैं। व्हाट योर पॉइंटर्स ऑन मेंटोरशिप, मेंटोर क्यों रखना ज़रूरी है, करियर काउंसलिंग या करियर गाइडेंस की क्यों ज़रूरत है, ठीक है। क्योंकि ये जो फील्ड है ना, ये अब शायद हमारे बाद जो जनरेशन है, उनके माँ-बाप जब हम बनेंगे तो हमें तो शायद पता भी हो, ठीक है। मुझे कन्फर्म पता है कि हमारी ऐज में हम में से किसी की अम्मा प्रोजेक्ट मैनेजर तो नहीं होगी, ठीक है। हम उस ऐज ग्रुप से आए हैं जहाँ पे जो सबसे मेन चीज़ थी, या तो डॉक्टर बन जाओ या तो इंजीनियर बन जाओ,
उसके आगे तो अब जाके लोगों को पता चला है कि अच्छा यार फील्ड में ये भी कुछ होता है। टिल द डेट मुझे मुझे बताना पड़ता है अपने घर वालों को कि यार मैं ये करता हूँ, क्योंकि उनको स्पेसिफिकली पता नहीं, उनको ये पता है कि हाँ कुछ करता है, बट स्पेसिफिकली क्या है, क्योंकि उन्होंने वो चीज़ एक्सप्लोर नहीं करी। आहिस्ता-आहिस्ता जनरेशन में चीज़ें आ रही हैं, आने वाली नस्लों को ये पता होगा, ठीक है? तो आप करियर काउंसलर घर में तो नहीं रख सकते, क्योंकि इसमें मैं ये नहीं बोलता कि ठीक है यार आप अपने माँ-बाप की बात नहीं सुनो, क्योंकि लेकिन उनको उस चीज़ की नॉलेज नहीं है, तो शायद वो उसके बारे में आपको बताना पाएँ। आपको कोई ना कोई मेंटोरशिप चाहिए होगा, आपको कोई ना कोई ऐसा बंदा चाहिए होगा, आपको 4.3 जीपीए लेने का कोई फ़ायदा नहीं है कि आपको यही ना पता हो कि पाथवे क्या है। आपने किस तरीके से चीज़ें देखी, मेंटोरशिप किस तरीके से देखते हो, कौन से की पॉइंटर्स हैं जो लगता है कि यार इनको अगर जितना जल्दी फ़ॉलो करना शुरू करोगे एंड में उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा? देखिए, मेरे हिसाब से हमारे यहाँ जो एजुकेशन सिस्टम है ना, स्पेशली पाकिस्तान कराची में अगर आप कहें तो यूनिवर्सिटीज़ हज़ारों के हिसाब से बनी हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ वगैरह ये सब हैं। यहाँ पे जॉब फेयर्स अगर हों या वर्कशॉप की जाए बच्चों को, यहाँ पे ही मेरे ख्याल से इस टाइम पे गाइडेंस दी जाए ना अगर, तो उनको कहीं न कहीं उनको क्लैरिटी मिल जाती है कि कहाँ जाना है। और वही आपकी वाली बात कि डॉक्टर और इंजीनियर, अब इंजीनियर में भी बहुत सारे डोमेन्स आ गए, इंजीनियरिंग में भी काफ़ी डोमेन्स हैं और ऐसे ही हमारा जो सीएस है, सीएस में अच्छे खासे डोमेन्स हैं। पाकिस्तान अभी भी बहुत सारी चीज़ों में बहुत पीछे है, जैसे ना एआई अगर आप कह लें, मशीन लर्निंग आप कह लें, हम लोग अभी भी हमारे यूनिवर्सिटीज़ में ये वाले कोर्सेज़ आए ही नहीं, इंट्रोड्यूस ही नहीं हुआ है कि भाई ये वाली एक चीज़ भी है। तो मेरे हिसाब से तो ये वाली चीज़ मुझे जो जहाँ पे बहुत ज़्यादा गैप मिला था, वो यही वाला एक बहुत बड़ा गैप था कि मुझे सही मेंटोरशिप नहीं मिली, जिसकी वज़ह से जो है वो मैं यहाँ-वहाँ घूम-घूम के फिर एक मैंने पाथ पकड़ा कि चलो मुझे ये चीज़ करनी है। अच्छा मुझे कोडिंग नहीं करनी है, तो मुझे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करनी है और वो उस चीज़ को फाइंड आउट करते-करते मुझे 5-6 साल लग गए। हुँ। तो मेरे हिसाब से इफ़ ये वाली गाइडेंस हमें यूनिवर्सिटी लेवल पे ही अगर दी जाए तो ज़्यादा बेहतर होता है। और अभी तो देखें हमारा टाइम फिर थोड़ा-सा इतना हम लोग को एक्सपोज़र नहीं था, लेकिन आने वाले दौर में नेटवर्क्स जो हैं लिंक्डइन पे मैं तो अभी मेरी छोटी बहनें हैं 4 ठीक है? और 2 जो हैं वो अभी से स्कूल स्कूल गोइंग हैं, अभी एक ने मैट्रिक किया है, तो मैं उनको तो हुँ। अभी से ही समझाती हूँ कि भई अपनी लिंक्डइन की प्रेज़ेंस रखो और इस पे एक्सप्लोर करती रहा करो कि क्या-क्या चीज़ें हैं, अपने इंटरेस्ट डेवलप करो। ये टाइम है आपका एक्सपेरिमेंट्स करने का। तो क्योंकि जब आप एक ग्रेजुएशन हो जाती है ना, उस टाइम पे फिर आप एक्सपेरिमेंट्स नहीं कर सकते, फिर आपको चूज़ करना होता है कि अब आपने क्या करना है आगे लाइफ तब तक वो आप एक्सपेरिमेंट्स होते हैं ना तब उन तक आप पक चुके होते हो ना, तो आपके पास कोई और चांस नहीं होता, चॉइस नहीं होती आपके पास। चांस नहीं था कोई चीज़ तो मेरे हिसाब से तो एक्सपेरिमेंट्स करने का टाइम ना हमारे पास यूनिवर्सिटी के टाइम पे होता है और मल्टीपल जिस तरह अब मुझे अगर उस टाइम पे पता होता तो मे बी शायद मैं पहले डेवलपमेंट ट्राई करती, नहीं होता तो फिर मैं शायद क्यूए की साइड पे जाती, वो नहीं होता तो फिर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की साइड पे आती। ये चीज़ें मुझे उस टाइम पे नहीं पता थी। तो आई बिलीव कि कुकिंग और ये सोशल मीडिया प्रेज़ेंस में भी काफ़ी सारी चीज़ों का अब बच्चों को आइडिया हो जाता है कि क्या-क्या करना चाहिए। और जैसे अभी आप सेशन कर रहे हैं, इस तरह के सेशन मज़ीद हो तो तो भी शायद लोगों को आइडिया द पड़े कि यार अच्छा चलो ये थैंक चीज़ें हैं हमारे थैंक यू फॉर दैट, बट द मेन आइडिया इज़ दैट, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने भी जब अपनी फ़ील्ड से बाहर निकल के एक्सप्लोर करना शुरू करा, तो मुझे पता चला कि देयर आर मल्टीपल फ़ील्ड्स, ठीक है? एंड उम, अ कंपनी, अ प्रोडक्ट इज़ नॉट समथिंग जो कि सिर्फ़ विजुअल ही हैवी हो सकता है। उसको बैकएंड पे सपोर्ट चाहिए होती है, ठीक है? और बहुत सारी ऐसी फ़ील्ड हैं जिनका आपको पता नहीं चलता, क्योंकि लास्ट 3 से 4 साल में हमने बहुत तेज़ी से ग्रो करा है, ठीक है? कोरोना के बाद जिस तरीके से हम डिजिटल साइड पर आए हैं, हमने इस तरीके से नहीं देखा था। पहले शायद हम बहुत सारी चीज़ें कन्वेंशनल तरीके से कर रहे थे, और पहले डायनामिक्स थोड़े अलग थे। अब लास्ट 3 साल में जिस तरीके से एआई ने ग्रो करा है, ठीक है? आप चाह के भी उसको छोड़ नहीं सकते, ठीक है? आपको आपको ये करना पड़ता है कि भई आपको पता हो कि क्या अपडेट चल रहा है। आप यूज़ करो या ना करो, दैट्स योर पर्सनल फेवर, बट वन वे और अदर अगले 5-10 साल के अंदर आपके आपकी जॉब का 110% एआई खड़ा हुआ होगा। अब सवाल ये होगा कि आपको वो चीज़ आती है, नहीं आती। जिस तरीके से आपने बोला कि आप अपनी बहन को बोलते हो कि यार आप अपडेट रहो, आपको पता होना चाहिए, ठीक है? हम उस जनरेशन की बात कर रहे हैं जहाँ पे ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स को यू विल बी अमेज़्ड टू नो कि आई वाज़ इनवाइटेड इन अ यूनिवर्सिटी एज़ अ गेस्ट स्पीकर्स, और मुझे वहाँ जाके पता चला कि 80% ऑफ द स्टूडेंट इन द क्लास डोंट हैव अ लिंक्डइन प्रोफाइल, ठीक है? उनको ये नहीं पता होता कि कम्युनिकेशन करनी कैसे है। आप
प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में हो, आप किसी भी फ़ील्ड में हो, आपको अपना आउटरीच बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि किसी को नहीं पता कि सना नाम की कोई लड़की है जो कराची में किसी घर में रहती हैं और उनको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आती हो, ठीक है? तो आपको अगर हुँ, लोग नहीं जानेंगे तो आप रीच आउट नहीं कर सकते। सेम चीज़ जैसा आपने बोला, जब आपके पास मेंटोरशिप नहीं होते, ठीक है? तो आप इधर-उधर बहक जाते हो, फिर आपको देखना पड़ता है ट्रायल एंड एरर करके। कोशिश ये करनी चाहिए सही प्लेटफ़ॉर्म पर होंगे, जिस तरीके से आजकल की जनरेशन को हर टिकटॉकर, हर यूट्यूबर का पता हुआ है, अगर आप लिंक्डइन पे जाएँगे तो आपको अच्छे प्रोफाइल्स का पता चलेगा। हुँ, आप उनको रीच आउट कर सकते हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं कि यार उनका क्या थीम है। दैट्स द सेम थिंग दैट आई डिड। अगर मुझे 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 मालूम करना था प्रोजेक्ट मैनेजर का, आई केम अप विद योर प्रोफाइल, वी कनेक्टेड एंड दिस नॉलेज विल हेल्प मी कि ठीक है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज़ नॉट जस्ट अ पीस ऑफ केक, इट्स नॉट अ पर्सन हू इज़ जस्ट डूइंग task on Jira or on Figma. He is managing a lot of things. So I'm pretty much sure कि a lot of people will learn from it. Thank you so much, Sana, for this lovely session. I'll be happy to have you in one of the session. और मुझे पूरा श्योर है कि अगर किसी को भी कोई हेल्प चाहिए होगी, they can reach out to you on LinkedIn and you will be here for helper. Thank you so much for your time. राइट।